May I request the Honourable Ministers to specify whether the government will prioritize the underserved rural clusters of Kanchipuram for additional 5G BTS installation under any ongoing or upcoming schemes, and the timeline for the ensuring full rural coverage in the district. Sir, today if you look at the 5G, more than 99% of the districts, that is 777 districts out of 778, have 5G coverage. The 5G coverage today, out of 1.2 billion people, 120 crore people, 36 crore people have 5G handsets and are using 5G services. Sir, the issue of the 5G coverage in rural villages is not just about the 5G towers or BTS. It is about the handset latching on to the 5G. When it comes to their own districts, today we have 37,000 5G BTS are in Tamil Nadu. In their own two villages, Tiruvannamalai and Kanchipuram, we have 224 and 231 villages with 5G BTS. This is on par with average of the rest of the India, sir. Thank you. But in addition to that, government has done an exceptional work to accelerate the 5G services, sir, by enabling TSPs, reducing their bank guarantees, removing the spectrum usage charges. Therefore, they can invest a lot more money in additional BTS and accelerating the services, sir. And this is a continuous process. Thank you. Lao Sri Krishna. Thank you, sir, for allowing me to ask. Sir, I'm not going to ask about 5G, but actually ask about 4G. The district I come from, Palnadu, has a lot of tribal population. In mandals like Ballapalli, Veldurti, Macharla, these 3-4 mandals have a lot of ST populations and a lot of PVTG habitations also. The question I have is that, yes, I appreciate the ministry for actually rolling out indigenously manufactured 4G equipment almost in 97,500 villages across the country. But in these PVTG habitations in my constituency, land has been allocated, but for such a long time, this 4G network has not been rolled out in these PVTG habitations. So I request, is there any timeline that they can give us that these PVTG locations can be given access to this 4G equipment? And if so, if there is any priority also given to this PVTG habitation, that will be great. Thank you, sir. Sir, when it comes to 4G, we have planned for around 27,000 towers across all these underserved areas, sir. These areas are far-flung, remote areas. Access has been an issue. Forest clearance, environmental clearance has been an issue. Therefore, our Honorable Cabinet Minister Scindia ji has written to individual chief ministers. I myself has written to each MP on exactly what the problems in that related area, so that we can coordinate with the local MP along with BSNL, who is an implementing agency, and the state government, so that we can accelerate this process, sir. When it comes to individual villages, there are variable factors, and it is very hard to give exact information on what it is. But we are here to address all those issues and accelerate, sir. And this Palnadu district is actually my own hometown, sir. I am happy to work on that. Thank you. Sri Abdul Rashid Sheikh. सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, करना, मच्छल, गुरेज, ऊड़ी, वहाँ पर 5G 4G तो दूर की बात, अभी मोबाइल टावर्स की भी ज़रूरत है। मतलब नेटवर्क में मतलब फ़ोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। गुजरपति अभी गाँव में टीवी चैनल पे जेल में देखा हूँ कि वहाँ पर लोग 5 दिन से LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं, CM साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें फ़ोन तो कम से कम फ़ोन की फैसिलिटी मिले। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि क्या ये मेहरबानी करके अपने जो इनके मतलब इनका विभाग जो है, इनका डिपार्टमेंट जो है, उन्हें कहेंगे कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वाई शुड दे सफ़र, स्पेशली इन कुपवारा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और जो अभी उन्होंने कहा कि हमने सारे MPs को लिखा है, मैं तो तिहाड़ जेल का MP हूँ, मुझे तो कोई लेटर उनका मिला नहीं, हम भी अपना दर्द बता दें। थैंक यू सर।
सर, ये प्रश्न के साथ और इसके पहले हमारे सांसद महोदय जो प्रश्न पूछा उसके साथ भी एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है। आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं बनी, लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है। अभी उत्तर में भी बताया गया कि करीब 47,000 टावर के लिए राशि भी उपलब्ध की गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। बाकी 12,000 टावर्स, जिसमें अभी हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, कश्मीर के हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, ये अभी भी कार्य प्रगति पर हैं। एक मिनट, इसके पीछे कई कारण हैं। मैं कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। कई जगह सर्वे नहीं हो पाया है, कई जगह राइट ऑफ वे की एक्सेस है, कई जगह राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। तो अप्रैल के माह में एक टावर के बारे में बैठकर हम लोग ने विश्लेषण किए और 2,415 कारण हैं। हमने एक कारण को रेखांकित किया। प्रदेश सरकार के साथ पत्राचार केवल नहीं, मुख्यमंत्रियों से राज्य मंत्री और मैंने स्वयं बात किया और आज हाउस में आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि 2,415 विषयों में से इस पिछले सोमवार हमने जो कैलकुलेट किया है 1,990 इश्यूज पूर्ण रूप से हम लोग ने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर चुके हैं। ये मुद्दा हमारा मंत्रालय और भारत सरकार हर हफ्ते के आधार पर देख रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने टारगेट पिछले 1 वर्ष में 25,000 टावर किए हैं, ये बाकी 12,000 टावर भी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक महत्व रखता है, हम संपूर्ण रूप से देश का 100% सैचुरेशन प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर अगले साल तक पूर्ण रूप से हम कर पाएंगे। सर, ये प्रश्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपेन जी को उनके प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष में सारे तथ्य रखना चाहता हूं। सर, दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में और संचार साथी ऐप
का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर, आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन नंबर 14